we are studying Madam Ride the Bus. Yesterday, I taught you how the old woman came near the seat of a buggy, and there was a beetle in her mouth. When she was talking, it was feeling like any time the pig may come out of her mouth. So that's why the bully disliked the woman what she was sitting near the bunny. But another side, the woman was looking at her and she doubted that why this girl is traveling alone. She should not do like this. क्योंकि ये बच्ची छोटी है, तो इस छोटी बच्ची को अकेले जो है यात्रा करना नहीं चाहिए. ऐसी वो जो है उनकी थिंकिंग है. Obviously, every parents will think the same what the lady was thinking over it. Since the age of the bunny was very little, she was looking very little itself. That's why the woman doubted why she is traveling alone in the bus. So now let's see here. Yeah. Now it is okay. Going everything? Okay, fine. So you saw how a lady came in her seat. She was eating beetle, which was very bad for the other passengers. Particularly the bully disliked it because there was a huge peak in her mouth. When she was speaking, it feels that any time the peak may come out of the mouth, out of her mouth. So she was hating to old lady. But the another side, the old lady was doubted that why the girl, though who are very little, very small in size, is traveling alone in the bus. So now let us see what the more is going to be over here. Now I am starting here. Oh, why don't you mind your own business? Said Belly, but she laughed all the same, and the conductor laughed too. But the old woman went on with her drivel. Here the meaning of drivel is silly nonsense. Given is it. Drivel means silly nonsense. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going to town? What is the street? What is the house number? Here the old lady asked, is it not good for you because your age is very small? So why you are traveling alone? What is your street number? What is your house number? She wanted to know from her. You needn't bother about me. I can take care of myself, Bali said. In response, Bali said, don't mind. Don't interfere in my matter. I know everything. What my house number, what my street number. I am not a child. I can handle myself. So don't interfere in my matter. Bali told to old woman. It's clear? Bali said, turning her face towards the window and staring out. And in this way, after finishing the conversation, the Bali is looking outside the window. Now the third. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. Here this is the past story. How the Bali have collected rupees 60, this is the story. How she have saved this amount. इस पैसे को बली ने कैसे सेव किया है, इसके बारे में कहानी जो है राइटर हमें बाद में सुनाते हैं. But in the beginning I told you how she was saving the money. But now he is going to reveal here how she was saving the amount. In this paragraph, her first journey, what careful,
painstaking, elaborate plans she had to make for it. Means for it already she have made a plan. How? She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Whatever the amount she was getting like as a pocket money, she was started to save. This is the back story कि how she have collected the coins. पैसा कहाँ से आया? तो whatever the amount she was getting from her father parents, she was saving. Her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloon and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. Resisting every temptation. Here temptation means greediness, lalach. Every child have the temptation of that age, but here resisting means opposing, means she is not doing the greediness. Against the temptation, there were so many things in the market, in the fair, even she was not greedy because she have a strong desire to go bus ride. That's why she saved all the amount. Even she was needy, she wanted to purchase the toy like and dislike what it was in the फेयर. जो भी मेले में था गांव के वो सब खरीदना चाहती थी, लाइक डिसलाइक टॉय लिखा हुआ है. तो एवरीथिंग शी वांटेड बट शी कुड नॉट बिकॉज शी वांटेड टू टेक अ बस राइड. चाहती थी कि बस की सवारी करें, इसलिए लालच आते हुए भी वो सारे लालच को रेसिस्ट मैंने उसके अगेंस्ट में जाना. रेसिस्टेंट लिखा हुआ वहाँ पर. टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मैंने ग्रीडीनेस, लालच. लालच तो उसे आता था कि मैं सारे चीज़ को खरीद लूँ, टॉय है या लाइक डिसलाइक जो भी है, लेकिन चूंकि उसकी एक ही ख्वाहिश थी वो था बस राइडिंग, इसलिए सारे पैसे को क्या कर ली, सेव करके रखती थी. पैसे जो मिलते थे उन्हें क्या किया, उन्होंने सेव कर लिया. लाइक एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे. हाउ मच अमाउंट शी सेव्ड? 60 पैसे. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Here given the little description about the fair though who will be held in the village, used to be held in the village. जो उनके गांव में मेला लगते थे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है थोड़ा बहुत, कि गांव में जो मेले लगते थे उनमें उनको पैसे मिलते थे, उस पैसे को वो सेव करके जो है वो अपने पॉकेट मनी रखती थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिजायर लिखा हुआ है यहाँ पर. व्हाट इट वाज द स्ट्रॉन्ग डिजायर? टू राइड इन अ बस. इट वाज हर स्ट्रॉन्ग डिजायर. क्लियर? स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या था उनका बेटा? टू राइड इन द बस. उनकी इच्छा थी कि हम बस में सवारी करें, इसलिए अपने पूरे लालच को एक तरफ पे रखती हैं और पैसे को बचा लेती हैं. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. सिंस द मनी वाज, नाउ शी हैड मनी, बट द अनदर प्रॉब्लम टू स्लीप आउट फ्रॉम द होम, स्कीप अप फ्रॉम द आई ऑफ हर मॉम. अपने मम्मी की नज़रों से बचना ये दूसरा प्रॉब्लम था. पहला प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज हर फर्स्ट प्लान? टू सेव द मनी. नाउ द सेकेंड प्लान इज गोइंग टू बी ओवर हियर. अब दूसरी प्लानिंग क्या है? टू स्लीप फ्रॉम द हाउस, घर से चुपके निकल जाना, स्लीप. टू सेव द मनी इट वाज हर फर्स्ट प्लान. पहला प्लान क्या था उनका? पैसे को बचाना. विच सी बी नाउ देयर इज अमाउंट ही हैड, व्हाट इट वाज फॉर द जर्नी. राइट? इन फर्स्ट प्लान सी बिकेम सक्सेस. नाउ सी रेडी टू गो. नाउ सी इज मेकिंग ए प्लान टू स्लीप आउट फ्रॉम द होम. घर से बाहर जाना ये दूसरा प्लान है. स्किप कर जाना, नज़रों से बच के निकलना, ये दूसरी प्लान है. तो कैसे सक्सेस होती है? लेट्स सी यहाँ आप नाउ रिवीलिंग.
After she had money saved, her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge. बिना मम्मी को जानकारी दिए घर से बाहर निकल जाना, ये उसकी दूसरी योजना थी, सेकंड प्लान था. पहले प्लान तो उनको पैसा सेव करना है, where she became success in doing like that. Now the second plan, ये सेकंड प्लान है स्लीप कर जाना घर से. कैसे करती हैं? नॉलेज. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. लेकिन बहुत आसानी से उन्होंने इसे भी सॉल्व कर दिया. कैसे? लेट्स सी. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours. सो प्रतिदिन दोपहर में आफ्टर फिनिशिंग द टास्क, डोमेस्टिक टास्क, घर के काम पूरा करने के बाद उनकी मम्मी का जो है नैप मतलब सोना, उनका प्लान था 1 to 4. 1 to 4 के बीच में क्या करती थी? वो रेस्ट लेती थी. सो वेरी इजीली शी बिकेम टू मेक अ प्लान ओवर हेयर. बहुत आसानी से उन्होंने अपनी योजना बना दी, क्योंकि 1 और 4 के बीच उनकी मम्मी क्या करती थी? सोती थी, रेस्ट लेती थी. राइट? यस. It had been, manage this without too much difficulty. Every day after lunch her mother would nap from about 1 to 4 hours. So Wali always used this hour for her excursions. As she stood looking from the doorway of her house, or sometime even ventured out into the village. Today the same hour could be used for her first excursion outside the village. Excursion means traveling, visiting. This hour she used because she know कि this hour my mother used to sleep, used to take a rest. That's why she selected this hour 1 to 4 o'clock. This time was very suitable for her. Why this was suitable? Because this time, during this time her mother was taking sleep, means she was sleeping. उनकी मम्मी जो है इस समय क्या करती थी? सोती थी. और इसी समय का उन्होंने फायदा उठाया है. इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज, कभी कभी, और वही समय था, दिस वाज द टाइम वेयर शी स्टैंडिंग ओवर द डोर एंड लुकिंग टू द बस एंड पैसेंजर. सेम टाइम यही है समय जिस समय वो दरवाजे पर खड़ा होकर के बस और पैसेंजर को देखती हैं, और यही वो समय है जिसमें वो प्लान बनाती हैं कि कैसे मैं घर से बिना मम्मी को जानकारी दिए बाहर जा सकती हूँ. क्योंकि उन्हें पता चल गया मम्मी का रूटीन कि मम्मी इस समय क्या करती है? वो सो जाती है. तो नाउ इट वाज वेरी इजी टू मैनेज. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. Now how the bus is crossing, how the bus is going over here, let's see. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape. Bare landscape means those land where it was bare, means no green plants, no forest. So the bus was crossing from that way where there were no any green plant. पहले तो यहाँ से बस आ रही है, स्टार्ट हो रही है जहाँ पर कोई जो है ग्रीन प्लांट नहीं है स्टार्टिंग में, फिर वहाँ से होते हुए बस निकलती है. Now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Odd wayside shop means different kind of shop, not a similar shop. Odd shop means different kind of shops. The shops were not the similar. एक जैसा दुकान नहीं, तरह तरह के दुकान थे. उस रास्ते से जो है गाड़ी जाती है. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming toward them, or a pedestrian crossing the road. Sometimes gobbling मतलब होते हैं आगे वाली बस को पीछे कर देना. You have seen on the road how the driver, yeah, they do the overtake, speedy.
they become speedy because everyone want to go ahead. तो यही हो रही है रोड पर गॉबलिंग, मतलब होते हैं जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं ना वो सब पीछे रह जाती है और इनकी बस जो है आगे की ओर निकल जाती है। तो वही सीन दिखा रहा है, बोलती है बली कि क्या क्या रोड पर हो रहा था, कि कभी गाड़ी आगे कभी गाड़ी पीछे होती थी। जो गाड़ी आगे थी वो क्या है पीछे हो जाती थी। रोड पर यही तो होता है, हम यात्रा करते हैं तो हमारे साथ भी तो यही होता है। जिस बस में हम सवार रहते हैं कभी बस पीछे हो जाती है, वही बस कभी आगे निकल जाती है। द सेम इसी को गॉबलिंग कहता है यहाँ पर। यस रोड बट देम आवर पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग द रोड। पेडेस्टेरियन मतलब जो पैदल जाने वाले हैं, वॉकर। जो पेडेस्टेरियन मतलब क्या, पैदल वाले। पेडेस्टेरियन मीन्स पैदल। जो पैदल वाले हैं वो पीछे छूट जाते हैं और बस क्या है आगे निकल जाती है। ऑब्वियसली जो पैदल चलेंगे वो तो पीछे हो ही जाएंगे, बस तो आगे निकल जाएगी। तो इसको बोलते हैं वो गॉबलिंग। रोड क्रॉसिंग द रोड बट लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। कह रहा है कि safely leaving everything behind the bus is going very safely, माने bus was safe, no any accident, safely the bus was crossing। Trees came running towards them, but they stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। Means one side to another side the bus is going by making a single mistake। There is not a single mistake by the driver and now the bus crossed in another side। एक रोड से दूसरी रोड में बस चली गई। अब जैसे होते हैं ना मेन रोड पर चले जाना, अब तो गलियों से जा रही थी क्योंकि बली तो घर है गांव है, तो गांव की गलियों से होते हुए बस कहाँ चली गई, अब मेन रोड पर, सिटी की मेन रोड पर चली गई बस। अब वहाँ से देखते हैं। सडनली बली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली। अचानक बली, ग्ली मीन्स हैप्पी, अचानक बली जो है जोर जोर से क्लैपिंग करने लगती है। वाई सी क्लैपिंग हैप्पीली, वो जो है खुश होकर के वो क्लैपिंग करने लगती हैं। सडनली बली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। वाई अ यंग काऊ टेल हाई इन द एयर वाई रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अचानक एक गाय जो अपनी पूंछ को ऊपर करके रोड पर ड्राइवर की दिशा में वो दौड़ रही थी। इसे देखकर बली जो है वो क्या करती हैं, क्लैपिंग करना शुरू करती हैं। ग्ली माने खुश होकर के वो क्लैपिंग करना शुरू कर देती हैं। मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस स्लोड टू ए क्राउल। बस स्लोड, स्लोड मतलब धीरे हो गई। बस क्या हो गई, धीरे। ऑब्वियसली द ड्राइवर सॉ एनिमल, तो ऑब्वियसली द स्पीड वुड बी, है ना, लेस। तो क्या हो गई, बस धीरे हो गई। क्राउल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और ड्राइवर ने क्या किया, वो अगेन अगेन वो अपना साउंड जो है दे रहा है, वो बजा रहा है। But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped। कहा जितना वो बजाता है उतना ही गाय उछलती है, जितना बजा रहा है गाय उतना ही उछलती है। देखो सीन दिया हुआ यहाँ पे ना, या honk, honk means blow, honk means blow, honked the more frightened, frightened मतलब fearful, frightened means fearful, उतना ही जो है डर से वो ऊपर की ओर भाग रही है। Became and the faster it gallop always right in front of the bus, और हमेशा सामने में ही आ जाती है बस के। वो बेचारा ड्राइवर जो है काफी प्रॉब्लम में है बस को आगे ले जाने में, राइट। यस somehow this was very funny to Bali। मीन्स वाट एवर गोइंग इट वॉज टोटली, इट वॉज वेरी फनी फॉर द बली। बली के लिए काफ़ी क्या था, ये फन था, फन के समान था।
राहुल। इट वॉज फन फॉर द बली, यह बली के लिए क्या था, फन के समान था, राइट। ये सब मजाक लग रहा था उसे। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, अंटिल देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। इतना हंस रहे थे। थापा जी, कैन यू सीट देयर, टीयर्स इन हर आईज। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, तुम ज़्यादा नहीं हंस रही हो, क्या तुम ज़्यादा नहीं हंस रही हो। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए कुछ बचा के रखो। ज़्यादा नहीं हंस रही हो, कल के लिए क्या करो, बचा करके इसे रखो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, फाइनली काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, वो रोड से ऑफ हो गई, मतलब वो सड़क से दूर चली गई। A speck of a train could be seen in the distance, अब क्या हुआ, स्पेक ऑफ अ डिस्टेंस मैंने कुछ दूर पर ट्रेन दिखाई पड़ा। आप सभी को पता है कि कोई कोई जो है बस जो है रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए जाती, इस पार से उस पार जाती है, तो रेलवे क्रॉसिंग मिल गया वहाँ पर, ठीक है। अब रेलवे क्रॉसिंग तो ऑब्वियसली ट्रेन की जो है आवाज़ आएगी, तो अब ट्रेन आ गई जो वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है और बस को इस पार से उस पार जाना है। नाउ लेट्स सी दैट सीन। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. जैसे ही ट्रेन पास आ रही थी उसके साइज जो है बड़े दिखाई पड़ रहे थे। ऑब्वियसली दूर होगा, फॉर अ डिस्टेंस इट लुक्स वेरी स्मॉल, व्हेन इट कम्स नियरर एंड नियरर इट लुक्स वेरी बिगर एंड बिगर इन साइज। जब दूर आप देखेंगे तो छोटा दिखाई पड़ेगा और जैसे जैसे पास आता था बहुत बड़ा दिखाई पड़ने लगा ट्रेन। वाई एक्सप्लेनेशन, बिकॉज फॉर अ बली इट वॉज एवरीथिंग न्यू, for Bali it was everything new. As it drew near, then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. इस प्रकार बस जो है रोर करते हुए, मैंने शेर की तरह दहाड़ते हुए तेजी से बस जो है वो तेजी से ट्रेन पार होती है और पार होने से बस में एक जो है शेकिंग आ जाता है, पता है ना, क्योंकि ट्रेन का जो स्पीड और बस की स्पीड दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जिस स्पीड से ट्रेन पार होती है आसपास के जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, शेकिंग होना शुरू करते हैं। बस जो है क्या हो गया, शेकिंग होना शुरू हो गया। उसमें बस तो खड़ी थी, उसको पार करने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन क्या होता है जब बस ट्रेन जो है स्पीड से जाती है तो चूँकि स्पीड उतनी ज़्यादा होते हैं कि वो सबको जो है हिला देती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, देन द बस पास्ट, अब बस जो है रेलवे स्टेशन पार कर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स द बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडेड थ्रू आउट फेयर, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, what a glittering display of clothes and other merchandise, such big crowd. After a few minutes the bus entered in the busy market, where there are so many shops, so many clothes were on display. Meaning it was looking in the market. मार्केट में बहुत सारे कपड़े जो डिस्प्ले के लिए लगाए हुए थे वो दिखाई पड़ने लगे। इन दिस वे शी बिकेम वेरी वेरी हैप्पी टू ऑल द सीन व्हाट शी वाज लुकिंग फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, क्योंकि पहली ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी इतने शॉप्स, इतने वैरायटी दुकान, बली हैव नेवर सीन इट, सो शी वाज वेरी हैप्पी टू सी ऑल द चार्मिंग ऑफ द मार्केट। नाउ द बस इज नियर द डेस्टिनेशन. Clothes and other merchandise, such big crowds. Struck dumb with wonder, Bali gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got up except Bali. बस जो है पहुंच जाती है, हर यात्री उतर जाते हैं, लेकिन बली उसी बस में रह जाती है. Hey lady, said the conductor, are not you ready to get up? This is as far as your 30 पैसे takes you. क्या आप नीचे नहीं आओगे? आपने जो मेरे को 30 पैसा दिया था, मैं 30 पैसा की यात्रा आपको
करा चुका हूँ, अब आप नीचे उतर जाओ। बिकॉज यू हैव गिवन मी 30 पैसे ओनली एंड व्हाट द डिस्टेंस इट वाज फॉर द 30 पैसे। नाउ गेट अप फ्रॉम द बस, कम, अब नीचे आ जाओ। नो, Wally said, I am going back on the same bus. From the same bus, I am going back, so I am not getting off. मैं नीचे नहीं आऊंगी। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. वो 30 पैसे फिर निकालती हैं और कंडक्टर को अगेन वो 30 पैसे दे देती हैं। Why? Is something the matter? No, nothing in the matter. I just felt like having a bus ride, that is all. What I wanted, I did. That finish. Now I will be back from the same bus. This is my 30 paise. Another would just give me a ticket. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? All by myself. Oh, I had been much too afraid. नहीं, मुझे डर लगता है। कंडक्टर ने कहा कि क्या आप ये सारे सिंडी को देखना नहीं चाहती हो, जो क्राउड है वहाँ पर देखना जाना नहीं चाहती हो? बोलती है आई एम अफ्रेड, मैंने मुझे क्या लगता है, डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। लेकिन बस में आने में तो आपको भय नहीं लगा। अब यहाँ कैसे भय लग रहा है? बस में आते समय आपको तो भय नहीं लगा, बस यहाँ भय कैसे लग रहा है? और पूछता है कंडक्टर से, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। वो बोली कि नहीं, भय की कोई बात ही नहीं है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। बोले कि क्यों नहीं जाकर कुछ आप पी लेते हो, ड्रिंक मतलब समथिंग बिकमिंग फ्रेश। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, डरने की कोई बात नहीं है। ओह नो, आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक्स, तब मेरे को लाने दो कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए, मैं ला करके तुम्हें। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। इट इज माई ट्रीट, यह ट्रीट है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पैसे नहीं लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज नो। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Finally, the bully was not agree with the conductor, and now it was the time when the bus was going to be back. He was waiting for the another passenger. Again there were not many passengers. In the returning time there were no more passengers. It was the same what it was going in the town, because it was a slack time. Or what had come in your book, that was a slacking time, right? Now the 4. Yeah, can you answer me, how did Wally save up money for her first journey? For first journey, how did Wally saved her money? How she saved the money? वो पैसे कैसे बचाती थी? Yes. Whatever the amount she was getting for a village fair, she was saving. So in this way, she saved amount 60 paise for the journey. So okay, you got everyone? How she did save the money from the? It's clear, everyone? Okay, hopefully you have got the lesson well, and the chapter 4 I will start tomorrow.